May I come in, sir? Come in, Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. take your seat. कब ग्रेजुएशन किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने 2018 में किया था 18 में। कहाँ से? आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, आफ्टर दैट? आफ्टर दैट आई डिड 1 year वर्क एट रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ शिफ्ट किस फील्ड रूप में इंजीनियर। काम कर रहे थे? शिफ्ट फील्ड इंजीनियर। ओके, शिफ्ट फील्ड इंजीनियर। यस सर। ओके, और उसके बाद छोड़ दिया आपने? यस सर, देन आई लेफ्ट फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। ओके, और अभी प्रिपरेशन, केवल प्रिपरेशन। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका? सोशलॉजी। Why you have opted sociology after doing graduation in engineering subject? So first reason is that chemical engineering is not an optional subject in civil services, and second is I wanted to know about the society because I from class 10th I was studying only science background, science and all, so that's why to know the society in better way, sociology is a good option. What is the globalization and deglobalization? So globalization is the diffusion and integration of cultures. Diffusion and integration. In Is it globalization? globalization, yes, In which way? Diffusion in which way? कल्चर का डिफ्यूजन होता है। Globalization is integration है ये ओके, of all the area of world, all the different cultural culture. aspect, all the social aspect. So you थैंक यू सर। realize what is deglobalization? Deglobalization is like the resistance against the Reverse of globalization. yes sir, resistance against the integration of different culture. तो ये हो गया कि आपको दुनिया से वापस अपने क्षेत्र की ओर लौटना। अपने अपने नेशन के। हैव यू हर्ड अबाउट कल्चर एंड कल्चरल रिलेटिविज्म? कल्चर रिलेटिविज्म, सॉरी सर, आई डोंट। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? I can't recall that. Have you read about any sociological thinker? Yes, sir. In Indian or Western? Indian. Indian, there is G.S. Ghurye, which is called father of Indian sociologists. Then M.N. What Srinivas. is the contribution of G.S. Ghurye in G.S. sociology? Ghurye was the first, he considered as first Indian sociologist. He was Indologist and diffusionist. He studied about the caste system and also the society of the Indian. Tell me something about dominant caste. Yes, sir. Dominant caste is a concept given by M.N. Srinivas. See, dominant caste is generally based on different parameters like the political strength. What is the parameter? That's I am telling. Political strength, numerical strength, and also the traditional caste system. Any example? Any example is Particular like from Bihar. in Bihar, Yadav caste can be considered as dominant caste because he has numerical strength. Are you aware about current affair, current development, international current development? Yes, sir. What is the Israel issue? Israel-Palestine issue is about the conflict between them because during between the two countries. Between two countries. Second countries? Sorry, sir. Actually, it should be Take your time. between Israel and Palestine. Palestine. Yes, sir. But I think Hamas has Hamas is a part. Yes, Palestine. not Palestine. Hamas is a part of Palestine. No. Hamas is a separate Terrorist organization. organization. Which type of organization? It's separatist organization. Separatist. It is demanding for the Palestine nation. Do you know about Hezbollah? Sorry, sir. अच्छा चलिए, अभी वायुसेना का नया फ्लैग
मिला है वायुसेना को, नया फ्लैग अपनाया गया है वायुसेना के लिए? Sorry sir, I don't have idea. अच्छा चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment is basically you are capable of working something, but you are not getting enough chance to do any work. Capable, you are capable. You have the knowledge, your technical knowledge or any other knowledge. But you are not But getting. you are not getting any Opportunity for employment. अच्छा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, नॉर्मल जो भी कुछ है। आप ये बताइए, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण? Friction is actually the resistance when a body moves. Friction is the resistance which applies on that. तो कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से हैं? I don't know about the type, but it is horizontal and vertical friction. We divide into that. और I don't know about the types. अच्छा, ओके। अच्छा, केमिस्ट्री में एक चीज़ आता है सेल और सब सेल। That I was guessing it in the electronic configuration. There is electron revolves around the center. How many cells and subcells? Sorry, sir. Tell me about the rules given by the scientist या जो भी है केमिस्ट्री के जो थे, कुछ रूल्स दिया गया है उससे संबंधित कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में किस प्रकार से भरे जाएंगे? Yes, I know that how it will be filled, but I can't remember the SPDL. I know a spin number and the Paul's exclusion principle. I can guess one. अच्छा, SPDA कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 8, D में 18, P में 8 होता है? 8 और 6. अच्छा, ये हमें बताइए, अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, ठीक है, तो कास्ट सर्वे का मेन मोटो क्या है, सामाजिक न्याय या फिर राजनीतिक रूप से अपना जो है फ़ायदा लेने के लिए क्या करवाया गया? जैसे कास्ट सर्वे तो मेनली सोशल जस्टिस के लिए है। फिर इसके विपक्षी पार्टियां जो थी वो कोर्ट पहुंच गई थी, केस कर दी थी कि नहीं इसको होने नहीं देना है। यस सर, वो बिकॉज ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि सामाजिक न्याय मिले? नहीं सर, उनका ये तर्क था कि मतलब कि कास्ट अगर सेंसस करेंगे तो हम लोग कास्ट को ज़्यादा उसको इजाफा कर रहे हैं जबकि कास्ट का उन्मूलन किया जाना चाहिए। वो चाहती हैं कि कास्ट का उन्मूलन किया जाए? मतलब ये उनका तर्क था। मतलब वोट बैंक की राजनीति सरकार कर रही है या विपक्ष कर रही थी? वोट बैंक की राजनीति से जाति, मतलब हम बिहार, खास करके बिहार समाज की मतलब एक रियलिटी है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो आइदर मतलब ये विपक्ष हो या पक्ष हो। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जाति तो फर्क पड़ता ही है। आपको मोटो हम समझ गए। एक चीज़ हमको बताइए, अभी भारत सरकार क्या हो रहा है कि कई सारे जैसे G20 हुआ या फिर पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ या आप देख लीजिए जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आपको नहीं लग रहा है काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडन किया जा रहा है? हर एक जो या तो सम्मेलन हो तो सम्मेलन को भी जो है वो समारोह में तब्दील कर दिया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको सरकार? Yes sir, because the G20 मतलब meeting happened in around more than 80 cities in India. So I think that it should be celebrated like that because first time in 18 years. आपको नहीं लग रहा है कि ये जनता के पैसे का बर्बादी हो रहा है? Sir, क्योंकि पिछला जो G20 हुआ था उसमें 600 या 700 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, लेकिन इस बार कई करोड़ मतलब कि कई गुना ज़्यादा जो है पैसा खर्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट का, जबकि ये विकासशील देश है और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा को इस तरह से इन्वेस्ट करना क्या आपको उचित लगता है? सर मुझे लगता है कि इंडिया मतलब ग्लोबल पावर बनना चाहता है, ग्लोबल पावर बनना चाहता है। कहाँ तो 80 करोड़ इतना
80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं और उसको कंटिन्यू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और आप ग्लोबल पावर कैसे बनिएगा फिर? तो उसको वो है ना, ये अभी फैक्ट है ना, ये सच्चाई है। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो हम मतलब डेवलपमेंट के लिए वो जो नीचे तबके के लोग हैं उनको। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? सॉरी मैम, आई कैंट रिकॉल, आई न्यू बट आई कैंट रिकॉल। कोई बात नहीं। आपका हॉबी क्या है? मैम डायरी राइटिंग एंड समटाइम आई ट्रैवल। ट्रैवलिंग। यस। अच्छा, ये ट्रैवलिंग से क्या कुछ लाभ होता है? इट्स मेनली फॉर रिक्रिएशन, फॉर स्ट्रेस रिलीज। अच्छा, स्ट्रेस रिलीज होता है। आप इंजीनियरिंग छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? So actually, my job was not. At my job, the work was very limited. I studied in IIT Bombay, and my job was to work in a plant, and the work was very limited, like 5-6 work a day, and daily the same work was given to me. So I wanted to shift in different field. क्या आपको स्टेट रोक सकती है? क्या आपको स्टेट रोक सकती है कि नहीं, आप जिस फील्ड में वहीं रहिए, अब इधर नहीं आना है आपको? नहीं सर, स्टेट क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ वोकेशन है सबके पास। फ्रीडम ऑफ वोकेशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 क्लॉज, आई डोंट नो, 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी और एफ आई कैन गेस। 19(1)(g) आपको क्या राइट देता है? वो राइट टू फ्रीडम देता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऑक्यूपेशन को लेके कि आप अपने ऑक्यूपेशन को लेके कहीं आप फ्री रहें, कुछ भी आप कर सकते हैं, और भी कोई प्रोविज़न किया गया है उसमें? से काफ़ी 19 क्लॉज 2 में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे सोवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के अगेंस्ट नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिस्ट्रिक्शन के नहीं अगेंस्ट। पूछ रहे, और भी कहीं इसके लिए कुछ प्रोविज़न है अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड? चलिए, प्रियम्बल को समराइज वे में आप बता सकते हैं कि प्रियम्बल क्या है, क्यों तैयार हुआ, इसमें है क्या एग्जैक्टली? Actually, preamble is the summary of our constitution. It can be said like for the in this it has been given that India will be secular, socialist, democratic and republic country. Also the justice, social justice, economic justice, political justice will be provided, and the freedom of worship, faith will be given. अच्छा, समरी जब हम किताब तैयार हो जाती तब उसको हम समराइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में समरी पहले लिख दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लिखा गया। समरी तो सबसे पहले आ गई थी, प्रियम्बल पहले ही आ गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। आप कह रहे हैं ये समरी है, प्रीफेस ऑफ ये समरी है, तो उसको बाद में आना चाहिए था, ये पहले क्यों आ गया? It can be preface of the constitution. तो इसको सोल क्यों कहा गया अलग से फिर? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Because मतलब content, the basic content of basic principle of the constitution is enshrined in the preamble. अच्छा, सर, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कुछ बता सकते हैं आप? Yes, judicial power of president one is according to Article 72, president can give relief to the convicted person, and even the pardon of the crime. और भी कुछ है, केवल यही है 72? Also, sorry sir, I can't recall. ठीक ठीक ठीक। चलिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ पता है आपको? जयप्रकाश नारायण एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे बिहार से। कुछ इकोनॉमी के फील्ड में कोई प्लान दिया था उन्होंने? सॉरी सर, आई कैन। अच्छा, प्लानिंग की शुरुआत हमारे यहाँ कब से होती है? प्लानिंग की शुरुआत कांग्रेस के 1931 कराची मीटिंग से स्टार्ट हुई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत, जिसमें एम.एन. रॉय ने वो प्रपोजल दिया था। 31 में ही दे दिया था? यस सर। चलिए, ठीक है, आप जा सकते हैं। सर थैंक यू सर।
बैठिए। अमितेश, यस सर। हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करेंगे आपके साथ, है ना, ताकि आप अपने को और इम्प्रूव कर सकें। कब है इंटरव्यू आपका? 14 को है सर। 14 को है, चलिए ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो एक जनरल जो इंटरव्यू के पर्पस से जो एक होता है जनरल प्रिपेयरनेस, वो मुझे मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। तो देखिए आपका जो है ना अपीयरेंस जो है थोड़ा सा, मतलब क्या कहा जाए, लुक्स लाइक यू आर इन हरी। तो एक तो अपीयरेंस से ही थोड़ा सा वो एक इमेज बनता है। तो जैसे आप अपीयर करें एक सधे हुए कदम से, थोड़ा गंभीर दिखता हुआ, है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक अलग चीज़ है, बाकी सर्विसेज है वो अलग चीज़ है ना। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, सब ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन उनका जो एक पर्सनैलिटी का जो परसेप्शन होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक सीन, है ना। तो आपको एक कूल, काम, कॉम्पैक्ट, कॉन्फिडेंट, समझ रहे बात, यस थोड़ा सा सीरियस दिखता हुआ आना है पहली चीज़, और हड़बड़ी में नहीं आना है। तो आप जैसे इनके जैसे लगता है एकदम हड़बड़ाया हुआ, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा रिलैक्स भी करेगा, थोड़ा टेंस भी करेगा, कई बार हंस भी देगा, तो बोर्ड जो करे, लेकिन आपको अपना जो एक पोजीशन है या अपना जो एक स्टेटस है वो मेंटेन करके रखना है। यानी कि बोर्ड थोड़ा सा लूज भी हो जाए तो आप उसके साथ लूज नहीं होंगे। आपको होठ आपका जो है ये चबाने लग रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर में, जब आज शुरू में तो आपका ठीक है, बाद में आप ये जो आपका है ये नहीं करना है ना, ये भी प्रेशर को शो करता है। तो मैंने क्या कहा कि प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड किया जाएगा, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ कूल एंड काम वे। हाँ, कुछ आंसर आप रॉन्ग दे के भी चले जा रहे हैं, तो अब जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो सॉरी बोल के निकल जाइए। गलत आंसर नहीं देना है, आंसर लपेटना नहीं है, ठीक है। क्लियर कट जान रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं, जान रहे हैं तो बता देना, नहीं जान रहे सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट गेटिंग, जो भी कुछ शब्द आपको जो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें जो मैंने सोशियोलॉजी मार्क कुछ चीज़ें पूछी, तो उस तरह का आंसर आपका नहीं था। और डोमिनेंट कास्ट का आंसर कुछ हद तक आपका ठीक था, बट और भी तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स से भी आपको जैसे कुछ भी नहीं आप पढ़े, कल से जो भी पेपर में आ रहा है, कल परसों से कम एक सप्ताह का तो आप देख ही के चलिए। अभी जो भी चीज़ें हैं काफ़ी रिलीवेंट है। इजराइल इशू काफ़ी इजराइल इशू मैंने पढ़ा है सर। तो इजराइल इशू पढ़ा था तो आपने कहाँ जवाब दिया, हमास, हिजबुल्लाह सब तो बताए नहीं आप। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, पोटेंशियल है आप में, ये तो दिख ही रहा है कि आप IIT बॉम्बे से बीटेक किए हुए हैं ऑलरेडी, बट यू हैव टू। पूछे जाएंगे, हाँ, आपसे तो उम्मीदें आसान ज़्यादा नहीं होगी, पूछा जाएगा, आपसे उम्मीदें ज़्यादा होगी, है ना। तो आप है जो थोड़ा सा इसको इस वे में थोड़ा सा देखिए 1-2 दिन, है ना। ठीक है अमितेश, है ना, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू मैम।